مولا 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 الہی تو ہی مالک ہے. ثابت قدم رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے ہمارا سامان بھی جلا دیا ہے. اچھا مجھے کچھ نہیں چھوڑا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے. جلیل یہ کیا ہے، سامان ہمارا جلا دیا. مطلب پورے گھر کا سامان جلا دیا؟ جلا دیا ہے پورے گھر کا. پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئے ہم. بس والوں نے بھی الحمدللہ کہ کرایہ تھوڑا لیا ہمارے. ٹھیک ہو. بھوکے مرنے بچے اب بھی کہہ رہے تھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی بھوک لگی. نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. سیدھی بات کرے کوئی شے ہو تو ہم رکھیں. 1,24,000 روپے کمبر ہے. جو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے. بالکل. لا الہ الا اللہ محمد رسول. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. کلمۃ طیبہ من پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمۃ طیبہ من پاک لا الہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. سارے گناہ میرے معاف ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ سارے گناہ معاف ہو گئے. انشاءاللہ. اسلام میں بہت طاقت ہے، خوش ہے بہت. اچھا پہلے کیسی زندگی تھی، اب کیسی زندگی ہے؟ اس زندگی سے یہ زندگی بہت اچھی. وہ تنگی کا بھی ہے نا، دل اتنا ہے. کوئی کہے نا کولے ہیں نیچے، کوئی کہے کہ ایسے کر، میں کولوں پہ بھی لیٹنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا. نہ ہی چھوڑوں گا. ایک جھپی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سب سے پہلے آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی ہے اور ماشاءاللہ آپ اسلام کے دائرے میں آئے ہیں. تو دیکھیے یہ سب سے بہت بڑی توفیق ہے اللہ پاک کی. ٹھیک ہے نا، اور خوش قسمت ہیں آپ ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا پہلے والا کیا نام تھا اور اب کیا نام ہے؟ محمد آصف. محمد آصف. اور اس سے پہلے کیا نام تھا آپ کا؟ آصف خالی. صرف آصف تھا. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یہ 2 سال ہو گئے ہیں ہمیں پورے. 2 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک. اسلام قبول کیے 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. ثابت قدم رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے ہمارا سامان بھی جلا دیا ہے. اچھا مجھے کچھ نہیں چھوڑا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ پہلے کہاں تھے اس سے پہلے؟ اس سے پہلے ہم کھانے وال کے تھے. کھانے وال کے تھے. ٹھیک. شادی میری ہوئی فیصل آباد میں. ٹھیک ہو گیا. فیصل آباد میں کیپٹن نثار اکبر ہے، اس کی فیکٹری میں نے اسلام قبول کیا تھا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. مجھے خانہ کعبہ کی خواب آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھی میں حج کر رہا ہوں. میں نے اپنے دوستوں کو بتایا ہے. میں جھاڑو مارنے والا تھا، ماشاءاللہ. کلین شیپ تھا. تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا، انہوں نے ماشاءاللہ مٹھائیاں بانٹی 5-5 کلو والے ڈبے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ادھر دشمنداری بہت ہو گئی تھی، اس لیے ادھر نکل آیا. اچھا وہاں پہ آپ کا خاندان وہیں پہ سارا پڑا ہوا ہے؟ وہ ادھر ہی ہیں میرے سسرال والے نا. تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان والے آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ہمارے ساتھ تعلقات چھوڑ گئے سارا. بالکل غم خوشی چھوڑ دی انہوں نے. کچھ بھی نہیں. یہ کپڑے جو پہنے ہوئے نا ہم نے اپنے بانجوں کے پہنے ہوئے ہیں. اچھا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہو. پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئے ہم. بس والوں نے بھی الحمدللہ کہ کرایہ تھوڑا لیا ہمارے. ٹھیک ہو گیا. بھی غریب ہیں یہ. اچھا یہ جو اب لوگ فیصل آباد میں خانے وال میں جب آپ تھے جی تو وہاں پہ آپ کیا کام کرتے تھے؟ جھاڑو کا. جھاڑو کا کام کرتے تھے. تو وہاں پہ کتنی تنخواہ آپ کو ملتی تھی؟ ادھر ہمیں ملتی تھی سر تقریباً نا کسی جیسے کسی کی نوکری ہے نا، ٹھیک ہو گیا. کسی کی نوکری پہ ٹھہرا ہوتا تھا نا، وہ مجھے دیتا تھا 10,000 روپیہ. ٹھیک ہو گیا. تو فیصل آباد میں جب سیکورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا ماشاءاللہ میری 20,000 25,000 تنخواہ ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. ادھر صرف انہوں نے ہمارا جینا آرام کیا تھا، ہم نکل آئے. مطلب ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کون سا کام کیا ہے؟ مطلب کس طرح انہوں نے آپ کو ذلیل کیا؟ جلیل یہ کیا ہے، سامان ہمارا جلا دیا. مطلب پورے گھر کا سامان جلا دیا ہے پورے گھر کا. یہ تو میری بہن ہے، مسیح ہے، اس کے دل میں پھر بھی خدا خوفی ہے کہ جس نے مجھے رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. ادھر اور بھی 3 بہنیں ہیں، کسی نے نہیں مجھے کہا میرے گھر آ جا، ورنہ میں اپنی جوان بیوی کو بیٹیوں کو کدھر بچوں کو لے کے جاتا. اللہ پاک میرے پاس 30 لیٹر بھی ہے SHO کا. میں ٹھیک ہو. گارڈ کی نوکری کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. مجھے مل جائے سیکورٹی گارڈ کی. اچھا اس وقت یہاں پہ آپ اب ڈی خان میں آئے ہو کتنا عرصہ آپ ہو گیا؟
अभी 4 दिन हुए हैं सर। 4 दिनों में आप डी खान आए हैं और कोई नौकरी वगैरह है यहाँ पे? नहीं है। नहीं सर, भूखे मर रहे हैं बच्चे। अब भी कह रहे थे भूख लगी है, भूख लगी, भूख लगी। ना हम रोजा रख सकते हैं, सीधी बात करें, कोई छाया हो तो हम रखें। जारी बात है, इनके भी माड़े हालात है मेरी बहन के। ऐसी बात है मेरी, इंशाल्लाह फिर भी इन्होंने बहन ने पनाह दी मुझे। देखें, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। हमारी देखें, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और अल्लाह पाक बेहतर से बेहतरीन सोचते हैं इंसानों के लिए, ठीक है ना। और अब इंशाल्लाह आप हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। हम लोग इंसानियत के ऊपर काम करते हैं, चाहे कोई भी मजहब से हो, किसी मजहब से भी हम लोग इंसानियत के ऊपर काम करने हैं। हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है कि हमने हर इंसान और हर मजहब के ऊपर काम करना है। 1,24,000 रुपये कम्बर है, जो नहीं मानता वो भी मुसलमान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने कलमा पढ़ा है, याद किया है? इंशाल्लाह। कलमा आपको आता है पूरा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बच्चों को सुनो, बच्चों से सुने आप। बेटा कलमा सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ। Inna kalimat tayyib min pap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna kalimat tayyib min pap la ilaha Muhammad Rasulullah. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इन सब की हयाती करे, हयाती करे। आप सोच नहीं सकते कि आप को अल्लाह पाक ने कितना बड़ा तोहफा अता किया है और किस्मत वाले लोगों को मिलता है, यकीन करें। अब हमारी ऐसे है ना, जैसे छोटा बच्चा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे पैदाइश है मेरी। नहीं सारे गुनाह मेरे माफ हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे गुनाह माफ हो गए। इंशाल्लाह 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 दोबारा करूंगा तो वो लिखे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी यही कोशिश है कि अल्लाह पाक हमें बचाए बुरे कामों से। इंशाल्लाह, आमीन 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 इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब ना नौकरी है, ना रिहाइश के लिए घर है, ना खाने पीने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आपको 4 दिन हो गए हैं यहाँ शिफ्ट किए हुए, खानदान वालों ने सब कुछ जला दिया, बर्बाद कर दिया, लातल को कर दी, लेकिन एक बहन ने आपको जगह दी हुई। अल्लाह पाक इनको भी हिम्मत और तौफीक दे ची और इनको अजर दे इस चीज़ का इंशाल्लाह। आसिफ भाई, एक बात याद रखें कि अब जो महीना चल रहा है माह रमज़ान मुबारक का, ठीक है ना जी जी, ये हमारा माशाल्लाह ऐसा महीना होता है कि इसमें अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं इस मंथ में। और इस महीने में ये होता है कि हम अमन व अमान का, अमन भाईचारों का, प्यार मोहब्बत का, एक नेक कारवाओं का, कार खैर का जो एक दर्स होता है वो हम सबको देते हैं। और उसमें अल्लाह पाक अपने बंदों पे खुसूसी करम भी करता है। अल्लाह पाक ने उससे पहले भी आप पे करम किया है और मज़ीद भी इंशाल्लाह करम करेगा। यह हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, या डी खान के डेरेवाल हमें देख रही हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये इन्होंने आपकी बातें सुन भी ली हैं और समझ भी ली हैं, हमें इनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इन्होंने आपकी बातें सुन भी ली है, समझ भी ली है, उनको पता है कि अब हमने क्या करना है। पाकिस्तानियों, आप सबने एक बात याद रखें, सुन भी ली है, अब ये हमारे मुसलमान भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने जो करना है इनके लिए खुद करना है, याद रखिए। अब ये हमारे डी खान के मेहमान भी हैं, जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं, जितने बड़े बड़े सरपरस्त आला हैं, जिनके पास दिन की कमान है हमारी डी खान की, खासकर जितने भी मुफ्ती साहब हैं, वो मेरे पैगाम को सुन भी रही हैं, देख भी रही हैं। आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब ने अब मोहम्मद आसिफ साहब की मदद ज़रूर करनी है हर लिहाज से। पहले तो घर नहीं है, चाहे किराए का हो लेकिन इनका अपना हो, नौकरी हो अपनी हो, 4 पैसे आए बच्चे खा सकें। अब ये कह रहे हैं कि हमने कुछ खाया भी नहीं है और ना रोज़ा रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। खानदान वालों ने इतना जुल्म किया कि घर तक सारा सामान जला के राख कर दिया। लेकिन इनकी जो बात का एक निचोड़ निकाल दूं कि दीन इस्लाम के लिए इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। तो इसके बाद पाकिस्तानियों और ख़ासकर डी खान वालों हद ख़त्म हो गई है। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमें किसी से कोई कारोबार नहीं है, लेकिन हम अपने भाई का ख्याल रखेंगे। आप सब के साथ मिलकर आप सब ने ख्याल रखना है। डी खान का ईदगाह का ये इलाका है, इसमें ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप सब ने इनकी सपोर्ट करनी है। सबसे पहले बच्चों के कपड़े लेने हैं, घर का सामान लेना है, घर अरेंज करना है। अगर किसी के पास कोई घर ठहरा हुआ है, आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बहुत सारे आपको अल्लाह पाक ने नवाजे होंगी, तो उसमें अगर एक घर इनको दिया जाए या कोई रेंट पे दिया जाए, कोई महाना बंदा निकल आए जो इनका महाना रेंट पेड करता रहे, बिजली का बिल पेड करता रहे, और कोई नौकरी जो अच्छी सी हो। पहले भाई हमारे झाड़ू लगा देते, लेकिन आप माशाल्लाह इनको कोई अच्छी जॉब। आपकी तालीम है? तालीम नहीं है, फिर भी मुझे अस्सलाम में आया, मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है, मेरे पास 30 लेटर है।
अच्छा ये भाई कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी मिले मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर इससे अच्छी भी कोई नौकरी मिल सके, कोई देना चाहे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद आसिफ साहब को मैं आपसे मिलवाने लेके आऊँगा, ऑफिस बुला लेंगे, वहाँ पे बैठ के मामला तय कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि इस माह रमज़ान मुबारक में एक बेहतरीन मौका है, यकीन करिए। आप सब सुन रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा अमल आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे और भी गैर मुस्लिम हैं उनको भी हम लोग इस्लाम की दावत देंगे इंशाल्लाह। ये हम जो सिस्टम है हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। 8 अफराद मैंने और भी उधर किए हैं फैसलाबाद में, 8 अफराद माशाल्लाह। ये भाई बता रहे हैं कि हमने 8 अफराद और भी मुसलमान किए हैं। तो हम लोग देखें, अगर ये हम किसी के साथ अच्छा ही कर रहे हैं, उसकी दुनिया भी बना रहे हैं, और मरने के बाद जो जिंदगी असल है वो मरने के बाद की है, वो तहयात ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है। तो मेरा ख्याल है कि अब भाई जो है माशाल्लाह बेहतरीन एक मज़हब में आ चुके हैं, हक के मज़हब में आ चुके हैं, और इंशाल्लाह इसको अल्लाह पाक बेहतरीन अवार्ड भी देंगे, बेहतरीन इनाम भी देंगे। दुनिया में आप सबके हाथों देंगे, आखिरत में वो खुद देंगे। तो जितना हो सके इस भाई के लिए डोनेट करें, जो कुछ आपसे हो सकता है। अब इस भाई के लिए आप लोगों ने जान मारनी है, तान मारना है, ताकि इसको ये महसूस ना हो कि मैं एक मेहमान की तरह डी खान में आया था, लेकिन डी खान वालों ने मेरी मेहमान नवाजी नहीं की थी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मेरे मुंह में खाक, ऐसा कभी भी ना हो। लेकिन आप सब ने सपोर्ट करनी है, ताउन करना है, ताकि मोहम्मद आसिफ साहब को एक बेहतरीन ज़िंदगी मिल सके, सुकून ज़िंदगी। ये छोटे बच्चों का मुस्तकबिल आपके बच्चों की मुस्तकबिल जैसा है। अब आप सब ने इस बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है मेरे साथ मिलके इंशाल्लाह। और ये कुछ तोहफा है अल्लाह पाक की तरफ से, ठीक है ना? पकड़ो, ये कुछ तोहफा है, ठीक हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कुछ तोहफा है हमारी तरफ से। ये हमारी तरफ से कुछ तोहफा है, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा ये है, हमारा कोई एहसान नहीं है। ये सिर्फ बच्चों के गिफ्ट्स हैं, ठीक है ना? आपने कुछ सामान वगैरह ले लेना है, ठीक है ना? खाने का चीजें डालनी है, ठीक है अम्मा? अम्मा आप कुछ बताना चाहें? हाँ जी, आप कुछ कहना चाहें? थोड़ी सीधी है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, इस्लाम में बहुत ताकत है, खुश है बहुत। अच्छा, पहले कैसी जिंदगी थी, आप कैसी जिंदगी है? उस जिंदगी से ये जिंदगी बहुत अच्छी। वो जिंदगी किस तरह थी, जरा कुछ बताएं। कुछ ऐसे पल जो गुजरे हैं और अब के पल जो गुजर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। बेशक तंगी का भी है ना, दिल इतना है, कोई कहे ना कोले नीचे, कोई कहे कि ऐसे कर, मैं कोलों पे भी लेटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा। एक झप्पी माशाल्लाह माशाल्लाह। चारपाइयाँ भी नहीं, बिस्तरे भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये आप सब ने पाकिस्तान में इस पर गैरत करनी है खुदा के लिए। खुदारा मुझे दोबारा ना कहना पड़े, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही हसास केस मैंने लिया हुआ है। आप सब ने मिल के मेरा साथ देना है, ताकि इसके लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकें। खुदारा आप सब ने सपोर्ट करें, ताउन करें, ताकि मोहम्मद आसिफ साहब को एक बेहतरीन ज़िंदगी हम लोग अल्लाह पाक की तरफ से तोहफे जो दिए गए हैं वसीले बन के हम अता करें। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आसिफ साहब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपने आमिर भाई को दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।